Okay, students, hello. 8th class. In the last class, we have studied the land use patterns. हमारा chapter का name था land resources. That was soil, land, and water. Okay, they were the main resources we were studying in the geography chapter 2. In the previous classes, we have also completed the land use patterns that were landforms, mainly mountains, plateaus, and plains. Okay. Now we have to study about the factors which determine the land use patterns. There were many factors on which the land use pattern is basically dependent. They are climate, soil, topography, and minerals, and availability of water, which affects the pattern of land use. Soil, climate, topography, minerals, और availability of water. ये वो factors हैं जिनके ऊपर हमारा land use pattern depend करता है. Okay? Technology, इनके अलावा, besides these factors, there are 3 or 4 main factors also on which the land use pattern depend. They are government policy. We are going to study about these factors one by one in the next classes. Okay. Now, the question comes here is how we are going to divide our land use patterns. Basically, beta, we are dividing the land use patterns on the basis of ownership. On the basis of ownership, there are 2 types of land patterns. See, you can see there that there are 2 types of land use on the basis of ownership. On the basis of ownership, there are on the basis of ownership, हमारे 2 तरह के land patterns होते हैं, जो कि है private land and community land. Private land, सबसे पहले हम private land के बारे में study करेंगे. Private land क्या होता है? देखिए, private land is owned by individuals. Private land होता है जो किसी एक व्यक्ति की प्रॉपर्टी हो. Okay? Usage and produce of this piece of land is the property of the owner. जो भी कुछ यूज इस प्रॉपर्टी का करना है वो उस व्यक्ति का होता है, एंड जो भी वहां पर प्रोड्यूस हो रहा है उस पीस ऑफ लैंड में जो भी कुछ प्रोड्यूस हो रहा है वो सब प्राइवेटली उसी एक व्यक्ति के द्वारा यूज किया जाता है जिसकी वो प्रॉपर्टी है. फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, मान लीजिए आपके घर पर एक गार्डन है. ओके, एंड दैट गार्डन इज योर्स बिकॉज वो आपके घर में है, आपकी प्रॉपर्टी है वो घर, और आपकी जमीन के ऊपर आप उसमें जो भी ग्रो करते हैं, ठीक है, उस हाउस प्लॉट जो गार्डन है उसमें वॉट एवर यू आर ग्रोइंग इज योर. ओके, आपकी मर्जी है, यू यूज इट फॉर योर सेल्फ, और यू कैन ऑल्सो सेल इट इन द मार्केट, or you can give to any of your friend. That is your property. You have full rights to use it as you like. Okay. Same another example, like you have built a house. आपने एक घर बनवाया है, so that house belongs to you. Okay. तो वो आपकी अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी है. या किसी व्यक्ति की इंडस्ट्रीज है, that is also his own property. And for example, wells, या आपके घर में नल होते हैं, they are also your own property. Okay, you can sit like whatever you are wish to. The second thing, second use of basis of land is community land. Okay, second जो हमारा piece of land है, that is community land. Community का मतलब क्या होता है? Community means the whole society, या फिर a particular group of persons who belongs to same religion or caste or at a same place. ठीक है, या तो सेम रिलीजन के लोगों की हो सकती है, या फिर एक पर्टिकुलर एरिया पर
रहने वाले लोगों की हो सकती है, या फिर वो व्यक्ति सेम एक जगह को कवर करते हो और एक कॉमन इंटरेस्ट वहां पे शेयर करते हो। ठीक है। कम्युनिटी लैंड इज ओन्ड नॉट बाय एन इंडिविजुअल। कम्युनिटी लैंड किसी भी एक इंडिविजुअल के द्वारा ओन नहीं किया जाता है। कम्युनिटी लैंड पूरी एक कम्युनिटी, पूरी एक सोसाइटी का होता है। ठीक है। एंड दिस लैंड इज यूज फॉर कॉमन यूजेस। ये कोई भी व्यक्ति अपने एक कॉमन यूज के लिए नहीं यूज कर सकता। ये जो कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज है, ये एक पूरी कम्युनिटी के द्वारा सभी के यूज के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके यहाँ मेडिकल फैसिलिटीज हैं, उन मेडिकल फैसिलिटीज को आप लोग यूज करते हैं। जैसे हॉस्पिटल्स होते हैं, सरकारी अस्पताल, तो वो कम्युनिटी ओन्ड है। मान लीजिए विलेज है, विलेज में पार्क, पॉन्ड्स है, ओके, आपकी कॉलोनी में पार्क, तो ये क्या है, ये है आपकी कम्युनिटी लैंड। तो उस पार्क में सभी बच्चे खेलते हैं, है ना। और जो विलेज के अंदर जो पॉन्ड है, वहां पर सभी जो फार्मर्स है वो उसको लेकर जाते होंगे। तो इस तरह से कम्युनिटी लैंड इज ओन्ड बाय अ होल कम्युनिटी एंड दीज कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। ये जो कम्युनिटी लैंड्स होते हैं, ये कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज होते हैं। मीन्स ये किसी भी इंडिविजुअल के द्वारा नहीं यूज किए जा सकते। नेक्स्ट वी हैव द फैक्टर्स अफेक्टिंग लैंड यूज पैटर्न्स। अब आगे जो हमारा टॉपिक है वो है फैक्टर्स। वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो कि हमारे लैंड यूज पैटर्न को इफेक्ट करते हैं। यू कैन, as you all can see this screen, there are 6 factors which affects the land use patterns. First of all, climate. Second, topography. Third, types of soil. Fourth, available टेक्नोलॉजी। ओके, ये सारे जो हमारे फैक्टर्स हैं, ये सारे फैक्टर्स हमारे वो फैक्टर्स हैं जो कि लैंड यूज पैटर्न को इफेक्ट करते हैं। और इन फैक्टर्स के बेसिस पर हम लोग ये देखते हैं कि किस तरह से जो कम्युनिटी है या पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ओके, तो सबसे पहले आता है हमारा क्लाइमेट। क्लाइमेट का मीन्स क्या होता है बेटा? मौसम, यानी एक पर्टिकुलर एरिया का मौसम कैसा रहता है। देखिए, क्लाइमेट ऑलवेज इफेक्ट्स द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। लैंड यूज ऑफ एनी प्लेस इज डायरेक्टली और इन बाय इट्स क्लाइमेट कंडीशंस। लैंड यूज जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनके क्लाइमेटिक कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, प्लेसेस वेयर द क्लाइमेट इज वेरी हार्श, for like polar regions or equatorial regions, there the population distribution is very low. जिन places में जो climate conditions बहुत harsh हैं, उन areas में population distribution बहुत कम होता है। जैसे polar regions या equatorial regions, इन regions में हमारा जो population distribution है वो ना के बराबर होता है, बहुत कम लोग रहते हैं। ठीक है। इवन द हियर द क्रॉप्स, अगर हम क्रॉप्स की बात करें तो दे आर ऑल्सो नॉट वेरी पॉसिबल टू ग्रो हियर, लाइक टाइनी shrubs, thick forests are found in these areas. Okay, while the areas which have mild climatic conditions, वो एरिया जहां पर माइल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस है, जहां पर ऐसा क्लाइमेट होता है जहां ना बहुत ज्यादा गर्मी है ना बहुत ज्यादा सर्दी है, उन जगहों पर वो लोग अक्सर सपोर्ट करते हैं लाइफ को, और वहाँ पॉस्चर यानी एग्रीकल्चर भी पॉसिबल होता है, और पॉस्चर यानी कि ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स, ये भी पॉसिबल है। क्लियर हुआ? द सेकेंड फैक्टर which affects the land use pattern is topography. Topography means the area how it is developed, यानी वो एरिया किस तरह की है। वेल ड्रेन्ड प्लेन रीजन्स प्रोवाइड suitable conditions for agricultural activities. जो प्लेन्स एरिया होते हैं
जहाँ पर वाटर फैसिलिटी प्रॉपर है, और जो मैदानी इलाके हैं दे आर मोस्टली यूजफुल फॉर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। वहाँ पर एग्रीकल्चर एक्टिविटी बहुत अच्छे से होती है, एंड इवन एग्रीकल्चर अच्छे से होगा तो दे आर सुटेबल फॉर पोस्चर्स, यानी कि वहाँ एनिमल्स भी होंगे जिनके लिए ग्रेजिंग कंडीशंस आर वेरी मच पॉसिबल। ओके, सच टाइप ऑफ लैंड यूज पैटर्न अट्रैक्ट अ ह्यूज नंबर ऑफ पॉपुलेशन। इस तरह का जो लैंड यूज पैटर्न होता है ये बहुत बड़ी पॉपुलेशन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। सो टोपोग्राफी इज वन ऑफ द important factor of land use pattern. Next, the third factor that affects the land use pattern is type of soil. Which type of soil is found in the particular area is very important factor. An adequate and well-planned land use pattern can be seen in the areas having fertile soil. जिन areas में fertile soil पाई जाती है वो areas ज्यादा वेल प्लान्ड होती हैं, ज्यादा पॉपुलेटेड होती हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर फर्टिलिटी ऑफ सॉइल है, मींस वहां पर एग्रीकल्चर इज वेरी मच पॉसिबल, है ना। इवन द इंडस्ट्रीज कैन ऑल्सो बी सेटअप देयर। एरियाज लाइक कोल्ड एंड हॉट डेजर्ट्स हैव इनफर्टाइल सॉइल एंड देयरफॉर दीज आर फ्री फ्रॉम प्रॉपर लैंड यूज। वो एरियाज जहां पर कोल्ड होता है या फिर हॉट एरियाज होती हैं और इनफर्टाइल्स है, तो इन एरियाज में लैंड यूज प्रॉपर नहीं हो पाता है, तो ये एरियाज प्रॉपरली यूज नहीं कर पाते हैं हम लोग फॉर एग्रीकल्चर। ओके, नाउ द फोर्थ फैक्टर which affects the land use pattern is availability of water. Students, you all know that if we are living at any place, we first of all looks for water. If you want to buy a land, then what will you look? You will find out whether the water is good or not. Okay, for a well developed and planned land use pattern, the water is very essential. Availability of water possible है या नहीं उस जगह पर, वहां पर खारा पानी है या मीठा पानी है, ये भी हम लोग देखते हैं। ओके, all types of forest, crops, pastures, etc. They all need plenty of water to survive. Even the industries needs water. So if there is no water availability in proper condition, then it will not be possible to settle the population there. Because beta, we cannot set up the industries also, we cannot do the agriculture, we cannot of animals, and we cannot feed them. So it is not possible for us to live without water in such a places where availability of water is very difficult. For example, desert areas. In desert areas, you all can see that women go distant places for bringing water. बहुत दूर दूर एरियाज में जाती हैं जहां से वो वाटर लेकर आती है ना। एंड सो here also in desert areas you find settlements are very scarce, means settlements जो है वो scarcely populated होते हैं, वहाँ कम है। कहीं पर जहाँ अच्छा पानी है, पीने लायक पानी है, वहां पर 2-3 लोग अपना मकान बना के रह रहे हैं। फिर थोड़ी दूरी पर आप जाते हो तो एक छोटा सा विलेज मिल गया जहाँ पर कुछ मकान बने हुए हैं। तो इस तरह से जहाँ पर वाटर अवेलेबिलिटी प्रॉपर होती है, अच्छी होती है, उस प्लेसेस पर लोग रहते हैं। तो सेटलमेंट्स एंड लैंड यूज पैटर्न इज वेरी मच affected by the availability of water. Clear? Now, the fifth factor that affects our land use pattern is minerals. Students, mineral deposits also influences the land use pattern of a place. जो mineral deposits हैं, वो भी land use pattern किसी भी place के affect करते हैं. For example, regions which are having minerals deposits, they are the industry setups. जिन places में mineral deposits होते हैं, वहाँ पर industries बहुत अच्छे से setup होती है, क्योंकि these areas are rich in minerals, है ना? And they are suitable for industrial growth. इन areas में क्योंकि mineral availability है, तो ये areas
इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए बहुत अच्छी हैं। तो इस तरह से जो मिनरल्स हैं उन जगहों पर लोगों को वर्क मिलता है, जॉब मिलता है। क्लियर? नेक्स्ट फैक्टर इज टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। जो नेक्स्ट फैक्टर है हमारा वो है टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। As you can see, the technology and human resources, they are both are the two sides of a coin. दोनों ही कॉइन के दो सिक्के कह सकते हो आप, जिसके ऊपर ये डिपेंडेंट है। बेटा ह्यूमन रिसोर्सेज are those resources which converts the technology into a used resource. देखिए रॉ मटेरियल से वो क्या बनाते हैं, टेक्नोलॉजी बनाते हैं। उस टेक्नोलॉजी को ह्यूमन रिसोर्स ही यूज करता है, अदरवाइज वो टेक्नोलॉजी क्या है, वो सिर्फ पड़ी हुई है, वेस्ट है वो टेक्नोलॉजी। ठीक है, उसका कोई यूज नहीं है जब तक कि एक ह्यूमन बीइंग उसको यूजफुल नहीं बनाता है। ओके, एंड आफ्टर द टेक्नोलॉजी इज मेड, ह्यूमन बीइंग यूजेस द टेक्नोलॉजी अकॉर्डिंग टू इट्स नेसेसिटी, अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए ह्यूमन बीइंग्स उस टेक्नोलॉजी को अपने मन मुताबिक यूज करता है। ओके, these were the some of the factors which affects the land. Students, I have told you about mineral deposits. देखिए मिनरल डिपॉजिट्स जो है वो इफेक्ट करते हैं उस पर्टिकुलर एरिया में इंडस्ट्रीज को डेवलप होने में। जो मिनरल डिपॉजिट्स है हमारे, वो उसकी वजह से जिस जगह पर मिनरल डिपॉजिट्स पाए जाते हैं वहां पर माइंस का काम होता है, और वहां से जो मिनरल्स निकलते हैं उनकी इंडस्ट्रीज को इजीली उन पर्टिकुलर एरियाज में सेटअप किया जा सकता है। ठीक है, तो जो ह्यूज इंडस्ट्रीज होती हैं दे कैन बी सेटअप हियर वेरी इफेक्टिवली। तो जो एरियाज में मिनरल डिपॉजिट्स होते हैं वहां पर इंडस्ट्रीज सेटअप होती हैं, और जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज में काम करने वाले वर्कर्स उन प्लेसेस तक पहुंचते हैं। ओके, तो इसीलिए मिनरल्स इफेक्ट करते हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। माइक ऑन करो अपना। यस मैम। स्टूडेंट्स अब हम आगे बढ़ते हैं। The next topic which we have to study is conservation of land resources. Conservation का means क्या होता है? Conservation means how we can secure the resources for our future generation. रिसोर्सेज को हमें इस तरह से यूज करना होता है कि हम उनको आने वाली जनरेशन तक के लिए बचा के रखें, ताकि जो नेक्स्ट जनरेशन है वो जब आए तो ऐसा ना हो कि रिसोर्सेज हमारे फिनिश हो जाए, है ना। तो रिसोर्सेज शुड बी अवेलेबल। यू ऑल कैन सी दैट देयर आर 5 ways to conserve the resources. In your syllabus there are only 5 ways given to conserve our resources. They are afforestation and proper management of grazing. Afforestation का मतलब क्या होता है? First, afforestation means होता है प्लांट्स लगाना, ओके, एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग। सबसे पहले आप अफॉरेस्टेशन करिए। अगर आप चाहते हैं कि आप लैंड रिसोर्सेज को बचा सके तो हमें सबसे पहले क्या जरूरी है कि हम ज्यादा से ज्यादा ट्रीज ग्रो करें। ओके, एंड सेकेंड थिंग इज प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग। मीन्स हमें ये प्रॉपर प्लानिंग करनी होगी कि हम किस तरह से मैनेज कर सकें कि जो हमारे एनिमल्स हैं उनको हम एक पर्टिकुलर एरिया में ना ग्रेज करके हम उन्हें अलग अलग एरियाज में ग्रेज करें, सो दैट द सॉइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड। अगर हम बेटा एक ही जगह पर अपने एनिमल्स को ग्रेज कराते हैं तो जो वहाँ ग्रासेस होती हैं या प्लांट्स होते हैं उनकी जो रूट्स होती हैं वो अपनी पकड़ जमीन से छोड़ती जाती है, सॉइल लूजन हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट to do a proper management of grazing for animals. Second thing that we have to study is planting of shelter beds. Planting of shelter beds means हम खेती करते हैं तो हमें कुछ एक रो